السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، آئیے اب ہم جانداروں کی دنیا، توافق اور جماعت بندی اس سبق کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جماعت ہفتم کے لیے پارٹ 4 جس کو تیار کیا ہے پرویز جہانگیر، HKD اینگلو اردو ہائی اسکول کراڑ، ضلع ساتارا۔ یادہ پیارے بچوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حیوانات میں توافق، جنگل اور گھاس کے علاقے، ریگستانی علاقے، برفانی علاقے، فضائی حیوانات، رینگنے والے حیوانات، ان سب میں ہم نے توافق کے بارے میں معلومات حاصل کی ہوئی ہے۔ آئیے اب اس سبق کے چوتھے اور آخری اس ویڈیو میں ہم آگے کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ غذا کے لیے حیوانات میں توافق۔ اب تک ہم نے ہر علاقوں میں پائے جانے والے حیوانات اور ان میں توافق کی خصوصیت کو دیکھے۔ اسی طرح نباتات میں غذا کے لیے یا غذا کو حاصل کرنے کے لیے ان میں جو توافق کی خصوصیت ہوتی ہے، ان کے متعلق بھی معلومات حاصل کی ہوئی ہے۔ اب اس کے آگے حیوانات میں غذا کے لیے توافق میں کون سی خصوصیت پائی جاتی ہے، اس کے متعلق ذرا ہم معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ حیوانات کی جماعت بندی جو ہے عام طور پر دو طریقوں سے ہم کرتے ہیں، جیسے سبزی خور حیوانات اور گوشت خور حیوانات۔ ان جانداروں میں مخصوص قسم کی خصوصیات پائی جاتی ہے جن کی وجہ سے ان حیوانات میں غذا کو کھانے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے بہت سارے حیوانات کو غذا کو حاصل کرنے کے لیے شکار کرتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے چیتا، تتلیاں، پرندے اور دوسرے کئی حیوانات کو ہم نے اپنے اطراف کے ماحول میں یا ڈسکوری چینل یا جغرافک چینل کے پروگراموں میں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا۔ آئیے اب ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کے مختلف حیوانات کا مشاہدہ ذیل کے جدول کی مدد سے مکمل کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں ذیل میں چند نکات لکھنا ہے، جیسے توافق، حیوانات اور توافق کا فائدہ۔ اب توافق میں یہاں پر ہمیں جانداروں میں پائی جانے والی جو توافق کی خصوصیت ہوتی ہے اسے ہمیں یہاں پہ نوٹ کرنا ہے، جیسے نوکیلے دانت۔ اب جانداروں میں یہ جو نوکیلے دانت پائے جاتے ہیں یہ کن حیوانات میں پائے جاتے ہیں اور ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ ہمیں مشاہدے کی بنا پر کرنا ہے۔ تو یہاں پر نوکیلے دانت جو ہے وہ شیر اور ببر شیر میں پائے جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ حیوانات میں اس طرح کے نوکیلے دانت اگر جب موجود ہوتے ہیں تو ان کے لیے گوشت کو چیر کر اور پھاڑ کر کھانے میں یہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے نوکدار لمبی چونچ عام طور پر یہ بغلے میں پائی جاتی ہے، اور بغلہ جو ہے اس کا استعمال پانی میں سے مچھلیاں پکڑ کر کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح سے چھوٹی چونچ عام طور پر چڑیا میں پائی جاتی ہے، جس کا استعمال جو ہے وہ دانہ چگنے کے لیے اس کا استعمال کرتی ہے۔ اسی طرح سے لمبی لیسدار زبان عام طور پر جو ہے کن حیوانات میں پائی جاتی ہے، تو یہ مینڈک اور گرگٹ میں پائی جاتی ہے، جس کا استعمال عام طور پر جو ہے یہ کیڑوں کا شکار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے لمبی گردن، آپ دیکھتے ہیں کہ زراف اور شتر مرغ کے اندر جو ہے یہ لمبی گردن موجود ہوتی ہے۔ اس کا استعمال عام طور پر زراف جو ہے یہ درختوں کے پتے کھانے کے لیے، اور شتر مرغ جو ہے یہ دور تک دیکھنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ماحولیاتی مشابہت کے لیے حیوانات میں توافق۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو ایک الگ الگ قسم کی خصوصیت سے نوازا ہے۔ آپ نے مختلف قسم کے جانداروں کو جنگلات میں
या बागीचों में देखे होंगे, जो हमें आसानी से उनके जिस्मानी रंगों की बिना पर और अतराफ के माहौलियाती रंगों की बिना पर नजर नहीं आते। जब घास फूस, पानी, दरख्तों की टहनियों पर या पत्तों पर जब ये पाए जाते हैं तो उनके जिस्म का रंग और अतराफ के रंगों से वो मुशाबा हो जाते हैं, यानी हुबहू। इस वजह से वो अपने शिकारी से बचते हैं और कभी कभार शिकार भी कर लेते हैं। जानदारों के रहने की जगह, यानी जिसको हम मस्कन कहते हैं, मखसूस जुग्राफियाई माहौल में जिंदा रहना और अफजाइश के लिए खुद को बाकी रखना, ग़िज़ा को हासिल करना, दुश्मनों से खुद की हिफाजत करना, जैसे कई वजूहात की बिना पर जानदारों के आज़ा और जिस्मानी अफ़आल में होने वाली तब्दीली को हम आमतौर पर तवाफ़िक कहते हैं। तवाफ़िक ये फ़ौरन होने वाला अमल नहीं है, ये अमल मुसलसल जारी रहता है। हज़ारों साल कबल मौजूद हैवानात और दौर हाजिर के हैवानात के जिस्म में नज़र आने वाली तब्दीलियाँ हालात के मुताबिक होने वाला तवाफ़िक है। ये जो फ़र्क है, या इसको हम तनु कहते हैं, इस तनु की हिफाजत ये हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है। जानदारों की हिफाजत करना ये हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है। चार्ल्स डार्विन का नज़रिया इर्तिक़ा। चार्ल्स डार्विन एक बहुत ही माहिर हयातियात था। उसने जानदारों के मुतालिक अपना एक नज़रिया पेश किया, जिसको डार्विन का नज़रिया इर्तिक़ा कहते हैं। नज़रिया इर्तिक़ा से मुराद है नबातात और हैवानात में मरहलावार होने वाली तरक्की को, यानी जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक जानदारों का वजूद कैसे हुआ होगा, इसके बारे में उसने अपना नज़रिया पेश किया। उसने कई किस्म के हैवानात और नबातात का मुताला किया और ये कहा कि जो जानदार माहौल में ज़िंदा रहने की सलाहियत सबसे ज़्यादा रखते हैं, यानी जो जानदार जिस माहौल में भी रहे, उस माहौल में अगर वो ज़िंदा रहने की सलाहियत अगर सबसे ज़्यादा उनमें रहती है, तो उन्हीं के आने वाले दौर में बाकी रहने का ज़्यादा इम्कान होता है। इसको उसने नज़रिए इर्तिक़ा कहा। ये डार्विन का सबसे पहला नज़रिया था। फिर उसने आगे ये बताया कि अगर कोई जानदार किसी ऐसी खुसूसियत के साथ पैदा हुआ हो जो उसके लिए फ़ायदा मंद हो और वो ज़िंदा रहे, तो उसकी अगली नस्ल भी उसी तरह की होगी। ये डार्विन का दूसरा नज़रिया है, जिसे कुदरती इंतखाब का नज़रिया हम आमतौर पर कहते हैं। जानदारों की जमात बंदी ज़रा याद कीजिए। नबातात और हैवानात की जमात बंदी क्यों और किन उसूलों पर की जाती है? हम जानते हैं कि नबातात और हैवानात का बाकायदा मुताला करने के लिए उनकी जमात बंदी की जाती है। नबातात की जमात बंदी उनके तनों की शक्ल, दरख्तों की तने जो होते हैं उनकी शक्ल की बिना पर, फूलों के खिलने या न खिलने और मस्कन के लिहाज से की जाती है। इसी तरह हैवानात की जमात बंदी खलियात की साख्त, रीढ़ की हड्डी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी और तौलीद के तरीके और मस्कन के लिहाज से की जाती है। जमात बंदी की इब्तदा आलम नबातात और आलम हैवानात से हुई है। उसके बाद जानदारों में खुसूसियात की बिना पर ग्रोह तैयार होते हैं। इसको जमात बंदी का हम सिलसिला मुरातिब कहते हैं। कार्ल लनाइस का दो इसमी तरीका। तसव्वुर कीजिए कि आपकी जमात में इकबाल नाम के 3 तालिब इल्म हैं। इनमें आप किसी एक को बुलाकर बात करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से करेंगे? ऐसे वक्त में आपको कौन सा इकबाल है, इसको मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे? हम ऐसे वक्त में सिर्फ इकबाल ये नाम न लेते हुए उनका पूरा नाम लेंगे, जैसे उसका नाम और
उसका ख़ानदानी नाम या जिसे हम सरनेम कहते हैं, इसे ही दो इसमी तरीका कहते हैं। हर जानदार को पहचानने के लिए दो इसमी तरीका राइज हुआ है। इसके मुताबिक हर जानदार को एक साइंसी नाम दिया गया है। इस नाम में दो इसम हैं। पहली इसम से जिन्स ज़ाहिर होती है और दूसरे से नूह ज़ाहिर होती है। नूह में उन तमाम जानदारों का शुमार होता है जो आपस में करीबी ताल्लुक़ रखते हैं, मसलन अफजाइश नस्ल वगैरह। दुनिया की तमाम बिल्लियाँ एक ही नूह से ताल्लुक़ रखती हैं, ताहम इनके रंग, ऊंचाई, दुम की लंबाई में फ़र्क हो सकता है। इसी तरह हैवानात में मुर्गी, गाय, कुत्ता और नबातात में आम, मकई और गेहूँ इसकी चंद मिसालें हैं। आइए दो इसमी तरीके से कुछ नबातात और हैवानात की मिसालों पर हम गौर करते हैं। इसमें सबसे पहले जानदार में शेर या बाघ, जिसकी जिन्स है पैंथरा, जिसकी नूह है टाइगर्स। तो यहाँ पर इसका जो साइंसी नाम बन जाएगा वो पैंथरा टाइगर्स बन जाएगा। साइंसी नाम आमतौर पर लिखते वक्त जिन्स और नूह दोनों को मिलाकर हम यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद दूसरा जो जानदार है वो है गाय, जिसकी जिन्स है बूस, जिसकी नूह है टावर्स। इस तरह से इसका जो साइंसी नाम बन जाएगा वो बोस टावर्स। इसी तरह से नबातात में हम जवार को लेते हैं, जिसकी जिन्स है सारगम और नूह है वलगीर। तो इस तरह से इसका साइंसी जो नाम बन जाता है वो सारगम वलगीर, इसको हम कह सकते हैं। इसी तरह से नबातात में दूसरा नाम है आम, जिसकी जिन्स है मैग्नीफेरा और नूह है इंडिका। इस तरह से इसका साइंसी नाम जो बन जाएगा वो मैग्नीफेरा इंडिका। इसी तरह से दूसरा एक फूलदार पौधा है जिसका नाम है जास्वंदी, जिसका जिन्स है हिबिस्कस रोज़ा और नूह है साइनिस। तो इस तरह से इसका साइंसी नाम जो बन जाएगा हिबिस्कस रोज़ा साइनिस। तो ये हैं कार्ल लनाइस के दो इसमी तरीके की चंद मिसालें। याद रखिए कि आलम यौम तहफ़्फ़ुज़ मेंढक हम आम तौर पर 29 अप्रैल को जो है मनाते हैं। उस दिन ख़ास तौर पर जंगली जानदारों के कानून के तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक उन्हें मारना, तकलीफ़ देना आम तौर पर जो है ये मना किया गया है। इसी तरह से हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारे माहौल में पाए जाने वाले किसी भी जानदार को हम तकलीफ़ नहीं दें। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से यहाँ पर अपना पहला सबक जानदारों की दुनिया, तवाफ़िक और जमात बंदी ये मुकम्मल होता है। जज़ाकल्लाह।